Today we are going to learn about the chapter of a letter to God. Letter to God is such type of a chapter. बहुत बहुत interesting chapter है. Like you will be coming to know about the relationship between the human being and God. Probably हमने बहुत सारे लोगों को देखे. Like कोई लोग बहुत spiritual है, बहुत religious लोग हैं. Religious in the sense हिंदी में अगर बोलना है तो भक्तिमान, right? बहुत devotee बनते हैं. And the rest percentage of people are like they don't believe in God. बिल्कुल believe नहीं करेंगे. They won't believe. They are like they used to be very practical and they won't go for temples or church or anywhere. Like अपने मेहनत. They only believe on their hard work. Hard work के ऊपर believe करेंगे. And they will be not suspecting anyone also. Like किसी के ऊपर like ऐसे सोचते भी नहीं है. नहीं इनकी वजह से हमारे काम होती है. So they don't have a habit of doing that also. Understanding? So आज हम क्या देखेंगे? Letter to God chapter में we are going to see about a person named Lencho. It's not Hencho, it is Lencho. Okay? Now Lencho is a protagonist in this chapter. Is a protagonist in this chapter. What is the meaning of protagonist now? Protagonist is nothing but a main character. He will be the main character of this chapter. The entire prose will be like conveying about him only. Without him, the chapter will be very meaningless. Okay, 10th standard. So see, it is a story of a farmer. It is a story of a farmer. So if you see, like India is an agricultural country, right? You might have learned this in geography. What is the reason behind that? Because most of the places, most of the states are now also like progressing in the agricultural field. Agricultural field में अभी भी बहुत काम चल रहा है. We are having a lot of like rice, grains, बहुत सारे crops का भी होती है. And most of the people are engaged in agriculture. बहुत engaged किया है. Farmer मतलब क्या है? किसान. Right? So it is also a story of a single farmer. Like मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत इसमें नहीं है. Like you will be knowing the story of farmers. जैसे कि we are like having a good food, we are having a good quality of food, अच्छे grains मिलती है, सब हमको like in hand मिल जाती है, right? If you want a rice, you go to the market, you get it from there, right? Market जाएंगे वहाँ से तुमको मिल जाएगी. And if you want something rather than that, like vegetables चाहिए या और कोई चीज़ चाहिए तो क्या करेंगे? Again you go for a market. So what happened in this? थोड़े ही distance में you are getting it in your hand, right? तुम्हारे हाथ में वो मिल रहा है. What is that because? Because of the farmers who are actually the primary people over here. Primary मतलब क्या है? एकदम शुरुआत. Like these are the main job. Agriculture is actually a primary job. बहुत important job है. And if you see, like I'll tell you one more example of this. Probably you know about tomatoes, right? You know about tomato. Tomato like एक ग्रेन होने दो या फिर एक वेजिटेबल होने दो, उसकी जो कंसिस्टेंसी, उसकी जो टेस्ट जो रहती है ना, द टेस्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, ऑन द वे यू आर गोइंग टू से दैट. सेफ कैसे कराएंगे, उसको कैसे देखेंगे, तुमने कैसे ख्याल रखेंगे, उसी बेसिस में उस प्रोडक्ट की एक्चुअल टेस्ट बढ़ती है. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइस. You can take the example of vegetable of tomato also. पूरे world में, in the entire world, the main exporter of tomato is none other than India. हमारे ही देश है, like tomato को बहुत ज़्यादा नंबर में export करते हैं. What is the reason? बाकी देश में भी चलता है, but यहाँ पे बहुत ज़्यादा export करते हैं. क्यों? Because हमारी जो soil की जो fertility है, soil की जो कीमत है ना, वो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छे हैं. एंड द वे वी केयर, हमारे जो देश की जो टमाटो की टेस्ट आती है ना, वो टेस्ट लाइक यू वोंट गेट एनीवेयर ओवर. और कहीं नहीं मिलेगा. लिख कर ले लो. बहुत एक्सपोर्ट करने का देश हमारा है ये. लेट इट बी लाइक ऑस्ट्रेलिया को या आउट अब्रॉड कौन से भी देश को
यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कौन से भी जगह ले लो, लाइक वी आर द मेजर एक्सपोर्टर। बट ये भी बात हमको पता नहीं है, ये भी बात इस पूरे वर्ल्ड में किसी को पता नहीं है, लाइक टमाटोज एग्रीकल्चर के कितने सारे फार्मर्स ने ओनली बिकॉज ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट भरते 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 तक जाके लास्ट में दोज पीपल आर अटेम्प्टिंग सुसाइड करते हैं उन्होंने, राइट? वो सुने होंगे ना, लाइक बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज सर्टन टाइप ऑफ अ बिजनेस, इट इज सर्टन टाइप ऑफ एन ऑक्यूपेशन। हमको लाइक पहले से फ्रॉम एडवांस से हमको लाइक वी हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, उसमें हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड फार्मर, इफ यू सी, यू नो अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लाइक मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, राइट? मकर संक्रांति is celebrated in Maharashtra, Pongal in Tamil Nadu, and Uttarayan is in Gujarat, right? It will be occurring on some date around like Jan 14-15 में कुछ आता है। It is actually meant for the farmer days, actually meant for farmers. क्यों? Because on that day the farmers will be like, actually they will pray, they will be praying to God. भगवान से वो अच्छे प्रेयर करते हैं, they will be praying, they will be asking God कि अभी जैसे बारिश होती है, अभी जैसे क्रॉप्स अच्छे होता है, वैसे हर बार होने का है। Why they are asking such question? वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? Because in agricultural field we used to invest in advance. And just giving you an example, like invest हमको पहले से करके रखना पड़ता है। For example, like whatever pesticides, chemical pesticides रहने दो, या ग्रेन्स के लिए कोई सीड्स रहने दो, एंड यू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? विनोविंग, प्लाविंग, थ्रेशिंग, ये सब थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, एंड इट इज लाइक ईयरली प्रोसेस, लाइक पूरे साल हमको उसमें काम करना पड़ेगा, राइट? सो ये सारी चीज़ क्या है, इसकी क्या है, लाइक यू वांट द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी देयर। यू हैव सीन नो, लाइक फार्मर्स ये भी बोलते हैं कि लाइक अच्छा बारिश होनी चाहिए, और बारिश का कैसा आएगा, लाइक ज़्यादा भी कम होएगा तो भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी बहुत दिक्कत होती है, राइट? बहुत दिक्कत हो रहा है, क्यों? स्पॉइल हो जाती है ना क्रॉप्स, और बारिश नहीं होगा तो क्या हो जाती है, सूख जाती है पूरा। सो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इस चीज़ के लिए दे विल बी बिलीविंग, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर बिलीविंग दैट गॉड इज देयर, भगवान की बहुत ज़रूरत है, जब हम भगवान से सामने कुछ मांगेंगे तब हमको कुछ मिलेगा, राइट? ऐसे लाइक इट इज़ दियर वे ऑफ थॉट, बिकॉज इट इज़ नेचुरल थिंग, वो आएगा तो आएगा, नहीं तो फर्स्ट आएंगे। एंड इफ यू सी देयर आर कैनल्स, देयर आर वेल्स, रिवर्स, ये सारे पानी भी लाइक इस्तेमाल होती है। ये सब कहाँ होगा? जहाँ अच्छी बारिश होती है, जहाँ स्टोर करके रखेंगे, बिकॉज रेनी सीजन इज लाइक वी आर हैविंग रेनी सीजन ओनली फॉर the farmer's life are totally dependent. They are totally depending on the natural, on the nature, and that is the reason they used to pray in advance. Okay? ज़्यादा prayer करके like we want rain. Rain इसीलिए मांगते हैं. And if you see there are in village side and all, there are canals, there are wells. क्यों? That is one type of storing water. Like उसी में store करके रखते हैं. Water क्यों store करके रखते हैं? So that future conflicts जो है, फ्यूचर में लाइक खेती में हमको काम आएगा, लाइक वाटर की लेवल बचाने के लिए भी हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी करके दे यूज्ड टू कीप अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज़ ऑल्सो अ लाइफ स्टोरी ऑफ लेंशो। ही इज़ अ फार्मर एंड ही इज़ अ पर्सन हु इज़ लिविंग ऑन द हिली रीजन्स। हिली रीजन्स मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पहाड़ सब रहता है ना, वहाँ पे टॉप ऑफ द हिल में वो रहता है। सो इवन he is a person, he is from a very poor family, बहुत poor family से वो है, and he is waiting for a moment for the coming of rain. बारिश आने के लिए वो बहुत राह देख रहे, बहुत इंतजार कर रहे। क्यों? Because he is a farmer, he want his crops to grow well, बहुत अच्छे crops grow होना चाहिए, तो उस reason के लिए उसने wait कर रहे। Let me introduce this chapter, थोड़ा एक summarize बता देती हूँ। लाइक ये जो लेंचो फार्मर है ना, उसका लाइक ऐसे हालत हो जाएगी इस स्टोरी में दैट ही विल बी अ फार्मर, ही विल बी नॉट गेटिंग एनीथिंग। फार्मिंग के लिए सब सीड सब डाल के रहेगा, सब ग्रो भी होके आ जाएगा, बट व्हाट हैपेंस वंस
ऑन वन डे बहुत हेवी बारिश हो जाएगी। बारिश जब होती है तब लेंचो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वो तो वही सोचेगा कि अब बारिश आया और मेरा पूरा जो कष्ट रहता है वो निकल जाएगा। ऑब्वियसली जब बारिश होगा तो क्रॉप्स और फ्रेशली ग्रो हो जाती है, लेकिन वो जो बारिश था ना, वो बारिश धीरे धीरे करके हेल स्टोन्स बन जाते हैं। हेल स्टोन मतलब इफ यू सी द स्टोन रेनफॉल, बर्फ रेनफॉल जब मिलता है ना, सो वैसे बनता है। यस, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, बारिश बहुत कंटिन्यू होते होते क्या हो जाती है लास्ट में, उसके सारे क्रॉप्स जो है वो पूरे स्पॉइल हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो लिमिट ऑफ वाटर दिया जाएगा तब ठीक है, वाटर जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है स्पॉइल हो जाती है क्रॉप, राइट। सो उसी बेसिस में क्रॉप स्पॉइल हो जाएगा। वही रीज़न के लिए लेंचो बहुत उदास होके ही विल बिकम वेरी वेरी सैड एंड ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू गॉड। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बस इतने ही है। आई विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके।